Let's start with reading and translation of Chapter 2 of English Literature. Learn mathematics well. Long ago, बहुत समय पहले, there lived a man. एक आदमी रहता था. Who was rich, जो अमीर था. But he was very mean and greedy. मगर वह बहुत मतलबी और लालची था. Long ago, there lived a man who was rich, but he was very greedy, mean and greedy. He owned a large house, a huge house. उसके पास एक बहुत बड़ा घर था. Many acres of land, बहुत ज़्यादा ज़मीन, land के कई acres. Hundreds of cattle, सैकड़ों पशु. And had pots full of money, और पैसे से भरे बर्तन थे. He owned a huge house, many acres of land, hundreds of cattle, and had pots full of money. Still, फिर भी, he was always looking for ways of making more money. वह हमेशा और रास्ते ढूंढता था पैसे बनाने के, पैसे कमाने के. Still, he was always looking for ways of making more money. There is nothing wrong in making money. पैसे कमाने में कुछ भी गलत नहीं है. But this man was so greedy. मगर यह आदमी इतना लालची था that he did not even mind cheating. कि उसने धोखा देने को भी गलत नहीं समझा. There is nothing wrong in making money. But this man was so greedy that he did not even mind cheating. Farmers in his own village and the neighbor villages, उसके अपने ही गांव के किसान और पड़ोस के गांव के किसान, sometimes came to him ask for a loan, कई बार उसके पास आते थे उधारी मांगने के लिए. Farmers in his own village and the neighbor villages came to him ask for a loan. He would lend them money, वह उन्हें पैसे देता था, and charge very high interest on it, और उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज लेता था. He would lend them money and charge very high interest on it. Most of the farmers could not read and write. ज़्यादातर किसान पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, पढ़ और नहीं लिख पाते थे. So, इसलिए, after a few days, कुछ दिनों बाद, the rich man would suddenly announce, अमीर आदमी एकदम घोषणा करता था, that they owed him a huge amount, कि वे उस पर एक बड़ी रकम बकाया थे. But I had taken only a small sum. मगर मैंने एक छोटी राशि ली थी. The farmer would protest. किसान ने विरोध किया. But this is what my calculations show. मगर यह है जो मेरी calculations, मेरा हिसाब दर्शाता है. My dear man, मेरे प्यारे आदमी. You don't know mathematics. तुम हिसाब नहीं जानते. That's why you don't understand. इसलिए तुम नहीं समझते. Now give me back all my money. अब मुझे वापस दो मेरे सारे पैसे, और your land, या फिर अपनी ज़मीन. और other, in this way, इस तरीके से, the rich man tricked many poors. अमीर आदमी ने कई गरीब किसानों को
छला छला ठगा and took away their houses और उनसे लिए उनके घर, land, cattle और other valuable things they owned, या ज़मीन, पशु और या फिर दूसरे कीमती वस्तुएं they owned जो उनके पास थी। Once a poor man's wife fell ill. एक बार एक गरीब बूढ़े आदमी की बीवी बीमार बीमार हुई। They needed money for her treatment. उन्हें पैसों की ज़रूरत थी उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए। So they decided to sell his cow. तो उन्होंने निर्णय लिया उसकी गाय बेचने का। No one in his village wanted to buy a cow. उसके गांव में कोई भी एक गाय नहीं खरीदना चाहता था। Therefore, इसलिए he took his cow to the rich man. वह अपनी गाय को अमीर आदमी के पास ले गया। Now let's continue on second page. How much money do you want for this cow? तुम इस गाय के लिए कितने पैसे चाहते हो? The rich man asked. अमीर आदमी ने पूछा। It is a good cow. यह एक अच्छी गाय है and gives plenty of milk. और बहुत सारा दूध देती है। I want at least 200 rupees for it. मुझे इसके लिए कम से कम 200 रुपये चाहिए। 200 rupees, 200 रुपये। No one will give you more than 25 rupees. कोई भी तुम्हें 25 रुपीस से ज़्यादा नहीं देगा। For it, इसके लिए। Please sir, I am selling it. Please sir, मैं इसे बेच रहा हूँ। Only because I need money. सिर्फ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। It is worth a lot more than 25 rupees. इसकी कीमत 25 रुपये से 25 रुपीस से अधिक है। Well, my offer is 25 rupees. ठीक है, मेरी पेशकश 25 रुपीस है। मेरा ऑफर 25 रुपीस है। टेक इट और लीव इट, इसे लो या इसे जाने दो। The poor man had to sell the cow for 25 rupees. बूढ़े गरीब आदमी को अपनी गाय बेचनी पड़ी 25 रुपीस के लिए। Sadly, he turned to go to home. दुखी होते हुए वह घर जाने के लिए मुड़ा। On his way, अपने रास्ते पर he met प्रिया। वह प्रिया से मिला। प्रिया was an intelligent young lady. प्रिया एक बुद्धिमान जवान औरत थी। She asked the poor old man why was he so sad. उसने बूढ़े गरीब आदमी से पूछा कि वह इतना उदास क्यों था। The old man told her everything. बूढ़े आदमी ने उसे सब कुछ बताया। प्रिया became very angry. प्रिया बहुत गुस्सा हुई when she heard the old man's story. जब उसने बूढ़े आदमी की कहानी सुनी। The next day, अगले दिन, प्रिया went to see the rich man. प्रिया अमीर आदमी से को देखने गई, अमीर आदमी से मिलने गई। She told him, उसने उसे बताया, I have come to you, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, because you are the only person, क्योंकि तुम क्योंकि केवल तुम क्योंकि तुम एक ही व्यक्ति हो who can help me, जो मेरी मदद कर सकता है। Why? What happened? क्यों? क्या हुआ?
माई हस्बैंड इज़ इन द आर्मी। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, फौज में हैं। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम। मुझे उनसे एक पत्र मिला है। मुझे उनसे अभी एक पत्र मिला है। ही हैज़ आस्क्ड मी टू लीव इमीडिएटली। उसने मुझे तुरंत रवाना होने के लिए कहा है। विद ऑल द फैमिली, पूरे परिवार के साथ। ऑल्सो आई हैव टू टेक सम मनी फॉर हिम। और मुझे उसके लिए कुछ पैसे भी लेकर जाने हैं। वाई? क्यों? आई कैन नॉट टेल यू द रीज़न। मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। बट नाउ आई हैव टू सेल क्विकली एवरीथिंग दैट आई हैव। मगर अब मुझे वह सब कुछ बेचना होगा जो हमारे पास है। लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज 3। वट लक! क्या किस्मत है। द रिच मैन थॉट। अमीर आदमी ने सोचा। नाउ आई कैन बाय दैट लिटिल नाइस लिटिल पीस ऑफ लैंड। अब मैं खरीद सकता हूँ वह छोटी अच्छी ज़मीन का टुकड़ा। फॉर अ वेरी स्मॉल सम, एक बहुत कम रकम पर, एक बहुत कम रकम के लिए। अलाउड, ही सेड टू हर, जोर से उसने उसे कहा। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? येस प्लीज़, सेड प्रिया। हाँ, ज़रूर, प्रिया ने कहा। वी हैव अ hen, a calf, a cow, a bull, a house and some land. हमारे पास है एक मुर्गा, एक बछड़ा, एक गाय, एक सांड, एक घर, एंड सम लैंड, और कुछ ज़मीन। एज यू नो, जैसा आप जानते हो। आई डोंट नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल दीज थिंग्स टू डिफरेंट पर्सन्स। मैं यह चीज़ें नहीं बेचना चाहती अलग अलग पर्सन्स को, अलग अलग लोगों को। आई वॉन्ट टू सेल ऑल ऑफ देम। मैं इन सब को बेचना चाहती हूँ। टू वन पर्सन, एक व्यक्ति को। दैट इज़ वाई आई केम टू यू, इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ। हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स? तुम इन सभी चीज़ों के लिए कितना चाहती हो? लेट अस फिक्स द प्राइस इन अ पैटर्न। चलो एक पैटर्न में कीमत तय करते हैं। द प्राइस विल बी अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ ईच थिंग। कीमत प्रत्येक चीज़ के उपयोग के अनुसार होगी। आई एम इन अ हरी, मैं एक जल्दी में हूँ। सो आइल सेल द hen फॉर 2 रुपीज़, तो मैं मुर्गे को 2 रुपये में बेचूंगी। 2 रुपीज़, 2 रुपये। द रिच मैन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। अमीर आदमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अ गुड फैट hen फॉर जस्ट 2 रुपीज़, एक अच्छा मोटा मोटा मुर्गा सिर्फ 2 रुपये के लिए। ही बिगैन टू स्माइल इनवर्डली, वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। यस, सेड प्रिया। हाँ, प्रिया ने कहा। एंड अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न, और मेरे पैटर्न के मुताबिक। आई सेल द काफ फॉर 2 × 2 = 4 रुपीज़, मैं बछड़े को बेचूंगी। 2 × 2
₹4 के लिए, अ काफ फॉर ₹4, एक बछड़ा ₹4 के लिए। दिस इज रियली अ गुड पैटर्न, यह सचमुच एक बहुत अच्छा पैटर्न है। I'll buy whatever you want to sell, मैं खरीदूंगा जो कुछ भी तुम बेचना चाहती हो। द काओ अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न, गाय मेरे पैटर्न के मुताबिक, विल कॉस्ट 4 × 4 = 16 रुपीज़, 4 × 4 16 रुपीज़ की होगी। दिस इज एन एक्सीलेंट पैटर्न, यह एक बहुत अच्छा पैटर्न है। सेड द रिच मैन, रिच आदमी ने कहा, अमीर आदमी ने कहा। लेट अस प्राइस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, लेट अस प्राइस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, चलो तुम्हारे पैटर्न के अनुसार सभी चीज़ों की कीमत लगाएं। I'll buy everything, मैं सब कुछ खरीदूंगा। Are you sure? प्रिया asked, क्या आप श्योर हैं? प्रिया ने पूछा, क्या आपको यकीन है? Yes, yes, I am sure, हाँ हाँ मुझे यकीन है। Let us call the village council and make an agreement, चलो विलेज काउंसिल को, ग्राम सभा को बुलाते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक सौदा बनाते हैं। यस यस, लेट अस डू दैट क्विकली, हाँ हाँ हमें यह जल्दी करना चाहिए, चलो इसे जल्दी करें। सो दे मेड एन एग्रीमेंट, तो उन्होंने एक समझौता बनाया। इन फ्रंट ऑफ द विलेज काउंसिल के सामने। द रिच मैन एग्रीड टू पे प्रिया अकॉर्डिंग टू हर पैटर्न इमीडिएटली, अमीर आदमी ने प्रिया को पे करने अमीर आदमी प्रिया को पैसे देने के लिए माना, उसके पैटर्न के अनुसार तुरंत। अमीर आदमी तुरंत ही प्रिया को पैसे देने के लिए माना, उसके पैटर्न के अनुसार। हाउ मच शुड आई गिव यू इन ऑल, प्रिया, मुझे तुम्हें मुझे तुम्हें साथ में कितने पैसे देने चाहिए, प्रिया? आस्क्ड द रिच मैन, अमीर आदमी ने पूछा। लेट अस कैलकुलेट, शी सेड, हमें गणित करना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना चाहिए। सॉरी, हमें हम गणित करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। शी सेड, फर्स्ट द hen, सबसे पहले मुर्गा, 2 रुपीज़। देन द calf, फिर बछड़ा, 2 × 2 4 रुपीज़, 2 × 2 4 रुपीज़। देन द cow, फिर गाय, 4 × 4 16 रुपीज़। देन द bull, फिर बुल, फिर सांड, 16 × 16 256 रुपीज़। वट, 256 रुपीज़ फॉर अ बुल, क्या 256 रुपये, 256 रुपीज़ एक सांड के लिए? क्राइड द रिच मैन चिल्लाया। वेल यू एग्रीड, अच्छा तुम मान गए थे। सेड ऑल द काउंसिल मेंबर्स, सभी ग्राम सभा के मेंबर्स ने कहा। नेक्स्ट द प्रिया नेक्स्ट सेड प्रिया, फिर प्रिया ने कहा। कम्स द हाउस, आता है घर। फॉर दैट यू पे मी, उसके लिए तुम मुझे पे करते हो, तुम मुझे देते हो।
अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न, मेरे पैटर्न के मुताबिक। लेट्स कंटिन्यू विथ फोर्थ पेज। 256 multiplied by 256 is equal to 65,536 rupees. But that's impossible. मगर यह नामुमकिन है। The rich man shouted. अमीर आदमी चिल्लाया। Well, you agreed, said the council members. तुमने हाँ की, तुमने तुम मान गए थे, सभी काउंसिल मेंबर्स ने कहा, ग्राम सभा के मेंबर्स ने कहा। सो लास्ट ऑफ ऑल कम्स आर नाइस पीस ऑफ लैंड, और अंत में आता है हमारा अच्छा ज़मीन का टुकड़ा। एंड फॉर दैट यू पे, और उसके लिए तुम पे करते हो। अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न, मेरे पैटर्न के मुताबिक 65,536 multiplied by 65,536 is equal to 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 rupees. That's right, you agreed. यह सही है, तुम मान गए थे, काउंसिल मेंबर्स ने कहा। ओ नो, ओ नो, आई एम रूइंड। ओ नहीं, ओ नहीं, मैं बर्बाद हूँ। आई डोंट हैव सो मच मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाउ कैन आई पे यू, मैं तुम्हें कैसे पे करूँ। देन गिव हर ऑल दैट यू हैव एंड गो टू जेल फॉर नॉट कीपिंग द एग्रीमेंट। उसे सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है, और जेल चले जाओ सौदा ना रखने के लिए, said one of the council members. एक काउंसिल मेंबर ने, एक सभा के मेंबर ने कहा। प्लीज डू नॉट डू दिस, कृपया ऐसा ना करें। हैव पिटी ऑन अ पुअर ओल्ड मैन, एक बूढ़े गरीब आदमी पर दया दिखाएं। रिक्वेस्टेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने रिक्वेस्ट की। बट यू नेवर हैड पिटी फॉर एनीवन व्हेन यू वर रिच, मगर तुमने कभी किसी के लिए दया नहीं दिखाई जब तुम अमीर थे। वाई शुड वी हैव पिटी ऑन यू, हमें तुम पर दया क्यों दिखानी चाहिए। सेड प्रिया, प्रिया ने कहा। वेल, आई प्रॉमिस टू बी गुड इन फ्यूचर, ठीक है, मैं भविष्य में अच्छा होने का वादा करता हूँ। आई हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद करूँगा। आई रिटर्न टू पीपल वट आई हैव टेकन फ्रॉम देम, मैं लोगों को लौटा दूंगा जो मैंने उनसे लिया है। बट प्लीज़ टेक बैक दैट हॉरिबल एग्रीमेंट, मगर कृपया वह बेकार एग्रीमेंट, वह डरावना एग्रीमेंट वापस लो। द रिच मैन गेव बैक द पीपल देयर थिंग्स, अमीर आदमी ने सभी लोगों को उनकी चीज़ें लौटाई। दैट ही हैड टेकन फ्रॉम देम wrongfully, जो उसने उनसे गलत तरीके से ली थी। एंड प्रिया टुक बैक द एग्रीमेंट, और प्रिया ने एग्रीमेंट वापस लिया। देयर्स जस्ट वन मोर थिंग प्रिया, बस एक बात और है प्रिया, सेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा। वट इज इट, यह क्या है। प्लीज़ टीच मी मैथमेटिक्स, प्लीज़ मुझे मैथमेटिक्स सिखाओ।